Hello and welcome to my channel. Today we will study about kingdom Mycota. In kingdom Mycota, we study about fungi. So the term fungus in Latin means mushroom. Fungi are the achlorophyllous and heterotrophic thallophytes. Means ये achlorophyllous है यानी कि इनके पास chlorophyll pigment नहीं present है, so they cannot prepare their own food. Heterotrophic hai means for the nutrition they are dependent on other organisms. Thallophytes means their body is not differentiated into stem, leaves and roots. जो इनकी मेन बॉडी होती है यानी कि जो इनका थैलस होता है, it is made up of hyphae which together constitute a mycelium. So mycelium of fungi is a network-like structure. According to the fossil records, they were present in Devonian and Precambrian period. जो फंजाई है, इनकी जो हाइफी होती है, it may be septate or aseptate. Now, the fungi are not considered as plants, though इनके पास cell wall present होती है, just like plants, but they cannot prepare their own food like plants do. Thus, they are not considered plants. So, we can say that fungi are more like animals than like plants. Apart from this, जो fungi है वो कई सारे important एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए भी जाने जाते हैं, जिसकी सबसे पहले डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी by discovering an antibiotic penicillin while he was studying about bacteria Staphylococcus. And the penicillin was isolated from a fungi Penicillium chrysogenum. Fungi are cosmopolitan in distribution. They can be present in fresh or marine water. They can be terrestrial, airborne and parasitic. Although जो fungi होते हैं, सारे fungi saprophytic nature show करते हैं, but they can also be parasitic, means they can infect plants, animals and human beings as well. The branched filamentous hyphae forms a net-like structure जिसे हम mycelium कहते हैं. As it has been told earlier कि जो इनका hyphae होता है वो aseptate या septate दोनों हो सकता है. If the hyphae will be aseptate, it will be known as cenocytic hyphae. Cenocytic hyphae means उसमें multiple nucleus present रहेंगी. और aseptate mycelium या aseptate hyphae present होता है phycomycetes में या फिर lower fungi में. In phycomycetes, we study oomycetes and zygomycetes. इनका hyphae septate या हो सकता है and which may be uni, bi or multinucleate, like in case of higher fungi which are ascomycetes, basidiomycetes and neutromycetes. Although in some classes their septa may have simple pores, but in basidiomycetes डोलीपोर सेप्टा प्रेजेंट होता है. जो फंगस का मेन कंपोनेंट है इनकी सेल वॉल में, इट इज नोन एज फंगल सेल्यूलोज और काइटिन. While in case of lower fungi which are oomycetes, cell wall is composed of cellulose and glucan. हाइफी में कलरलेस वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. वैक्यूलेटेड मीन्स इनका जो साइटोप्लाज्म होगा इट विल हैव पोर्स. फर्दर फंजाई में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, बट दे हैव कैरोटिनॉइड पिगमेंट इन देम. द हाइफी मे बी होमो और हेट्रोकैरियोटिक, हैप्लॉइड, डाइकैरियोटिक or diploid.
जितने भी हायर फंजाई है यानी कि हायर क्लासेस है लाइक एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूट्रोमाइसीट्स, दे आर इमोटाइल यानी कि इनके पास फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होंगे। बट जो लोअर फंजाई होते हैं लाइक फाइकोमाइसीट्स विच इंक्लूड्स जाइगोमाइसीट्स एंड oomaइसीट्स, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं यानी कि जो इनके गैमीट्स हैं, दे आर मोटाइल एंड दे मे बी यूनी और बाइफ्लैजिलेटेड। फर्दर लोअर फंजाई में जो फ्लैजिला होगा वो दो टाइप्स का होगा which is known as whiplash and tinsel flagella। whiplash को एक्रोनिमेटिक भी कहा जाता है और tinsel को पेंटोनिमेटिक। whiplash फ्लैजिला स्मूथ फ्लैजिला होगा, वहीं tinsel में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे जिन्हें मेस्टिगोनीम्स कहते हैं। अब जो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एज दे आर हेट्रोट्रॉफिक विच मीन्स दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, तो ये पैरासाइट्स की तरह रह सकते हैं। पैरासाइट्स मीन्स पैरासाइट्स आर द फंजाई विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। जो पैरासाइट्स होंगे अगेन वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एज वेल एज फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मीन्स ये केवल लिविंग प्रोटोप्लाज्म पे सरवाइव करेंगी या किसी लिविंग होस्ट की प्रेजेंस में ही सरवाइव करेंगी, लाइक पक्सीनिया विच इज अ मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स। But some have the capability to become saprophytes। तो वो फंजाई जो वैसे पैरासिटिक नेचर शो करते हैं बट उनमें कैपेबिलिटी है सैप्रोफिटिक नेचर शो करने की भी, यानी कि वो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर सकते हैं अगर उन्हें प्रीफरेबल होस्ट ना मिले, तो उसे हम बोलेंगे फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। फैकल्टेटिव मीन्स विच हैव द कैपेबिलिटी। So facultative saprophytes means the parasites which have capability to be saprophyte in the absence of living host। उसके अलावा ये saprophytes होते हैं यानी कि they can obtain their nutrition from dead and decaying organic matter। अगेन saprophytes में भी obligate saprophytes हो सकते हैं यानी कि which will obtain their nutrition from dead organic matter only। For example mucor which is also known as pin mold और black mold या फिर black fungi। Facultative parasites again कुछ saprophytes में tendency होगी that they can infect any living organism also। उन्हें हम बोलेंगे facultative parasites means वैसे वो saprophytic nature के थे but उनमें capability है to infect the living organism also। For example fusarium and pythium। फर्दर ये सिम्बायोन्स की तरह भी रह सकते हैं लाइक द फंजाई विच ग्रो ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। तो कुछ फंजाई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहते हैं एंड बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, लाइक इन केस ऑफ लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। लाइकेन्स में फंगल और एल्गल कंपोनेंट होता है और यहाँ पे लाइकेन्स में 95% फंगल कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है एंड 5% एल्गल कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है। माइकोराइजा की तरह रह सकते हैं यानी कि माइको मीन्स फंजाई और जब फंजाई का एसोसिएशन होता है प्लांट की रूट्स के साथ। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, so on the basis of reproduction we can divide them into eucarpic and holocarpic। यूकार्पिक फंजाई हम उन्हें कहेंगे जिनमें सिर्फ एक वेजिटेटिव माइसीलियम का पार्ट रिप्रोडक्टिव यूनिट बना रहा है एंड द रेस्ट रिमेन्स वेजिटेटिव। यूकार्पिक फंजाई आर द वन in which only a part of the vegetative mycelium forms reproductive unit। वहीं होलोकार्पिक में भी द फंजाई जिनमें पूरा वेजिटेटिव सेल एक रिप्रोडक्टिव यूनिट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मोस्टली यूकार्पिक जो होते हैं फंजाई वो मल्टी सेल्यूलर फंजाई होते हैं, यानी कि मल्टी सेल्यूलर फंजाई में पूरे माइसीलियम का कुछ पार्ट ही रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाएगा।
होलोकार्पिक नॉर्मली यूनिसेल्युलर फंजाई होते हैं, जैसे कि सेक्रोमाइसीस। तो उसमें सेक्रोमाइसीस, जिसे यीस्ट कहते हैं, बेकर्स यीस्ट या ब्रीवर्स यीस्ट भी कहा जाता है, उनमें यूनिसेल्युलर वो जो यूनिसेल्युलर फंजाई है उनमें होल सेल विल ट्रांसफॉर्म इनटू रिप्रोडक्टिव यूनिट। फर्दर जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स के थ्रू होता है। In case of vegetative reproduction, they may reproduce by fragmentation, fission and budding. फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस और ऑल्टरनेरिया के केस में। फिजन और बडिंग हमें सेक्रोमाइसीस के केस में देखने को मिलेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तभी शो करते हैं जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया एंड स्पोर्स। जो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे दे मे बी यूनिसेल्युलर लाइक इन केस ऑफ एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, और मल्टीसेल्युलर एज इन केस ऑफ ऑल्टरनेरिया एंड सर्कोस्पोरा। फर्दर जो स्पोर्स होंगे दे कैन बी एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस स्पोर्स, यानी कि डिपेंडिंग ऑन कि वो स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं या बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं। Endogenous spores are the spores which will be developed in pycnidia or sporangia, inside the pycnidia and sporangia. इसके एग्जाम्पल है म्यूकर और राइजोपस। और exogenous spores होंगे which will develop on sporophores और conidiophores like in aspergillus and penicillium. उसके अलावा कुछ एसेक्सुअल फंगल स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जूस्पोर्स, और मेनली जूस्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे oomaisids के केस में। oomaisids आर द लोअर फंजाई जो जिसमें आपको एक्वेटिक फंजाई देखने के लिए भी मिलती है, लाइक एकाइला, पीथियम एंड फाइटोप्थोरा। उसके अलावा क्लेमाइडोस्पोर्स, ओइडिया और एप्लानोस्पोर्स के थ्रू भी इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनमें सारे फंगस के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है एक्सेप्ट ड्यूट्रोमाइसीड्स। एंड देयर इज वन फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट द फंजाई कि जैसे जैसे हम फंगस किंगडम को पढ़ते हैं और उसमें हायर क्लासेस में जाते हैं तो हायर क्लासेस में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो सिंपलर होते जाते हैं। यानी कि जो लोअर फंजाई होगी उनमें रिप्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, और जैसे जैसे हम हायर क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपलर होता जाएगा। और ड्यूट्रोमाइसीड्स के केस में जो सबसे हाईएस्ट फंजाई है, हायर क्लास ऑफ फंजाई है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ड्यूट्रोमाइसीड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और इसीलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। Here in the pictures we can see asexual reproduction is by conidia formation in case of Aspergillus and Penicillium, while by Oidia and Chlamydospore formation in case of Coprinus and Astilla. जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीन डिस्टिंक्ट फेजेस में क्लासिफाई किया गया है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी जहां पे दो कंपैटिबल गैमीट्स या सेक्स सेल्स का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करता है, और प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करने के बाद उनके जो कंपैटिबल न्यूक्लियाई हैं वो दे कम क्लोज टू ईच अदर। सो प्लाज्मोगैमी होगा द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू कंपैटिबल गैमीट्स और सेक्स सेल्स। फिर प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी, एंड कैरियन वर्ड का मीनिंग होता है लिटरल न्यूक्लियस, और गैमी मीन्स फ्यूजन। तो कैरियोगैमी में आएगा फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, जो दो फ्यूजिंग गैमीट्स थे उनके न्यूक्लियाई का फ्यूजन कैरियोगैमी कहलाएगा, और ये आपको एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस देता है। यहाँ पे से डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है। फाइकोमाइसीड्स के केस में या जो लोअर फंजाई है oomaisids और zygomaicids, उसमें कैरियोगैमी अकर्स सून आफ्टर प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी देखने को मिलेगी, लेकिन जो एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स होते हैं उनमें कैरियोगैमी इज डिलेड। कैरियोगैमी प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद नहीं होती है। यहाँ पे डाइकैरियोटाइजेशन देखने को मिलता है। डाइकैरियोटाइजेशन मीन्स जो न्यूक्लियाई है,
The word carry on will always imply for nuclei और die मतलब दो. तो यहाँ पे जो nuclei है, दो opposite strains के nuclei will arrange themselves in pairs and will form a dikaryon. और इस process को बोलते हैं dikaryoticization. तो ये जो डाइकैरियोटाइजेशन है या डाइकैरियोफेज है, ये आपको हायर फंजाई में देखने को मिलती है, यानी कि एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स. फर्दर जो डाइकैरियन है उसके दो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, एंड व्हेन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस विल फॉर्म, अब मियोसिस होगी. मियोसिस मींस रिडक्शन डिवीजन. इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में रिडक्शन डिवीजन होगा और जो हैप्लॉयड स्टेज है इट विल बी रीस्टैब्लिश्ड. So sexual reproduction in fungi is categorized into plasmogamy, karyogamy and meiosis. Plasmogamy में there is a fusion of protoplast, karyogamy में fusion of nuclei. Dikaryophase होगा जहां पे जो nuclei हैं opposite strains के they will make a pair which will be known as dikaryon. And then the last phase will be meiosis. After karyogamy, reduction division होगा diploid nucleus में and haploid stage will established. Further जो sexual reproduction है it is of different types. Planogamitic copulation, यहाँ पे naked motile gametes का fusion होता है. Planogamitic copulation में there is a fusion of two naked motile gametes. Naked का मतलब हुआ जिसमें cell wall नहीं present है. Naked means cell wall will not be present. तो planogametes हो गए naked motile gametes और उनके fusion को बोलेंगे planogamitic copulation. जो planogamitic copulation है it will be of three types: isogamy, anisogamy and oogamy. Isogamy में जो fusing gametes होंगे they will be morphologically similar but physiologically they will be different. Physiologically different means ये अलग अलग हाइफा में बनेंगे, but अगर आप इनको morphologically दिखने में ये बिल्कुल सेम दिखेंगे, सेम साइज एंड सेम शेप. इसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम. Anisogamy में जो fusing gametes हैं they will be morphologically as well as physiologically different. हमेशा जब भी आपका कॉपुलेशन होगा तो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट ही रहेगा, यानी कि दो अलग अलग हाइफी के गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे. आइसोगैमी में जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं दे विल बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. एनाइसोगैमी में फ्यूजिंग गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट रहेंगे. मेल गैमीट यहाँ पे स्मॉलर रहेगा एंड इट विल बी मोर एक्टिव देन द फीमेल गैमीट. मेल गैमीट हमेशा स्मॉल साइज का रहेगा विच विल बी मोर एक्टिव देन द फीमेल गैमीट. इसका एग्जाम्पल है एलोमाइसिस. थर्ड आता है oogammy. यहाँ पे एक फीमेल गैमीट जो कि नॉन मोटाइल रहेगा और फीमेल गैमीट को बोलेंगे ओवम. मेल गैमीट विच विल बी मोटाइल उसे बोलेंगे एंथ्रोजॉइड. तो फीमेल और मेल गैमीट का फ्यूजन होगा यहाँ पे. oogammy में फीमेल और मेल गैमीट विल फ्यूज टुगेदर. जो ये फीमेल और मेल गैमीट हैं यानी कि जो ओवम और एंथ्रोजॉइड है ये गैमिटेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं और गैमिटेंजिया का नाम है oogoनियम एंड एंथ्रीडियम. oogoनियम के अंदर ओवम प्रोड्यूस होगा और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस होगा. एंथ्रोजॉइड इज द मेल गैमीट while ovum is the female gamete. प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन के बाद आता है दूसरा रिप्रोडक्शन टाइप गैमिटेंशियल कॉन्टैक्ट. अब गैमिटेंशियल कॉन्टैक्ट में भी नाम से लग रहा है कि यहाँ पे फ्यूजन होगा गैमिटेंजिया का, या गैमिटेंजिया जो मेल और फीमेल गैमिटेंजिया थे, यानी कि गैमिटेंजिया आपका वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. गैमिटेंजिया कॉन्टैक्ट, गैमिटेंजिया कम्स इन कॉन्टैक्ट. यहाँ पे गैमीट्स गैमिटेंजिया से कभी भी रिलीज नहीं होते. गैमीट्स गैमिटेंजिया के अंदर ही रहते हैं, बट यहाँ पे मेल और फीमेल गैमिटेंजिया कॉन्टैक्ट में आते हैं विथ द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब. गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट हमेशा फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से होता है. यहाँ पे मेल और फीमेल गैमिटेंजियम विल कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड जो मेल न्यूक्लियाई है वो फीमेल गैमिटेंजियम की तरफ माइग्रेट करता है.
Male nuclei will migrate towards the female gamitangium. यहाँ पे गैमीट्स फ्यूज नहीं होते हैं, नाइदर दे लूज देयर आइडेंटिटी, यानी कि गैमीट्स कभी रिलीज ही नहीं हुए तो दे विल नेवर फ्यूज विद ईच अदर। तो यहाँ पे किसका कांटेक्ट हो रहा है? केवल गैमिटेंजिया का, बाय द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। अगेन मेल गैमिटेंजिया को बोलेंगे एंथ्रीडियम, फीमेल गैमिटेंजिया को बोलेंगे ऊगोनियम, और इस ऊगोनियम को इन केस ऑफ एस्कोमाइसीड्स एस्कोगोनियम कहा जाएगा। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है एस्परजिलस, पीथियम, फाइटोथोरा और एल्ब्यूबो में। नेक्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन आता है गैमिटेंजियल कॉप्युलेशन। यहाँ पे भी नाम से लग रहा है, यहाँ पे कॉप्युलेशन हो रहा है। यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स हैं गैमिटेंजिया के, two compatible gamitangia के contents will fuse together. Gamitangia will come in contact and their walls or their cell walls will dissolve and entire contents will mix together. यहाँ पे आपका न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। गैमिटेंजिया अल्टीमेटली फ्यूज करेंगे जिससे आपको मिलेगी कैरियोगेमी, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। गैमिटेंजियल कॉपुलेशन के एग्जांपल है म्यूकर एंड राइजोपस। नेक्स्ट आता है स्पर्मेटाइजेशन। अब ये जो स्पर्मेटाइजेशन है ये कुछ एडवांस जेनरा में देखने को मिलता है, लाइक पक्सीनिया। एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि जैसे जैसे हम फंजाई में हायर क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो सिंपलर होता जाता है। तो जो एडवांस जेनरा यानी कि बेसिडियोमाइसीड्स का जो मेंबर है पक्सीनिया, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर लाइक स्पर्मेशिया के थ्रू होता है। यहाँ पे जो मेल गैमीट्स हैं दे आर मोर लाइक स्पोर्स, और फीमेल गैमीट्स आर रिसेप्टिव हाइफी। प्रॉपर फीमेल गैमीट्स ना बनके यहाँ पे एक हाइफी प्रोड्यूस होता है विच इज रिसेप्टिव, यानी कि ये जो स्पोर लाइक स्पर्मेशिया है उसको अपनी तरफ लेगा। So जो spermatia है it will carried away by air, water, insects to the receptive hyphae. जितना भी कंटेंट होगा स्पर्मेशियम का it will enter to the receptive hyphae through a pore. So in spermatization there are no sex organs, so there is no fusion. यहाँ पे स्पर्मेशिया होता है और एक रिसेप्टिव हाइफी होता है which will be considered as male and female gametes respectively. लास्ट टाइप का रिप्रोडक्शन है सोमैटोगैमी, और यहाँ पे भी आपको सेक्स ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड इन द रिप्रोडक्शन नोन एज सोमैटोगैमी। तो यहाँ पे दो वेजिटेटिव सेल्स या वेजिटेटिव हाइफी जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं। वेजिटेटिव सेल्स और वेजिटेटिव हाइफी विल फ्यूज टुगेदर। इसका एग्जाम्पल है मॉर्केला, पेजिजा एंड एगैरिकस। एगैरिकस अगेन आपका बेसिडियोमाइसीड्स का मेंबर है। That's all for today, and now you have to tell Morchella comes under which class of fungi? Morchella फंजाई की किस क्लास को बिलोंग करता है या किस क्लास के अंडर आता है? You can comment your answer, and if you like the video then do like, share, subscribe to my channel. Thank you.